بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج جو کہانی ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں اس کا عنوان ہے انتقام آتش۔ آج اس گھر میں صفحہ ماتم بچھا تھا جہاں کل تک خوشیوں کا راج تھا۔ ظاہر سی بات ہے خوشیاں وقت کی طرح ہیں، کب کسی کے پاس زیادہ دیر تک ٹھہرتی ہیں۔ آج آسمان بھی اس لڑکی پر ہوئے ستم پر برابر کا شریک تھا، اس لیے آنسو بہانے میں مصروف تھا۔ ہوتا بھی کیوں نہ، آج پھر بنت ہوا کو ابن آدم نے اپنی ہوس کا نشانہ بنایا تھا۔ اس کا بھائی اب تک بے یقین کھڑا تھا، جس بہن کو اس نے اپنے ہاتھوں سے پالا تھا۔ آج اس دنیا کے ظالموں نے اسے بے دردی سے کچل دیا تھا، اسے درندگی کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ اس کی چھوٹی بہن اس کے سرہانے بیٹھی داڑے مار کر رو رہی تھی اور اسے چپ کروانے والی آج خود ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی تھی۔ اسے منو مٹی تلے دفنایا گیا تھا۔ آج ایک بنت ہوا کی زندگی ختم ہوئی تھی، فقط کہہ دینے سے کہ ہم تمہارے غم کو سمجھتے ہیں۔ درد کی انتہا کو سمجھ پانا ناممکن ہے۔ عمل نہیں کرو پلیز مجھے تنگ، بھائی کا تمہیں پتہ ہے وہ کبھی نہیں مانیں گے۔ آپ کہیں گی تو وہ مان جائیں گے۔ بھائی آپ کی کوئی بات نہیں ٹالتے، نہیں مطلب نہیں، عمل یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ تم دوسرے شہر جانے کی بات کر رہی ہو، تمہیں پتہ ہے بھائی ڈرائیور کے بغیر ہمیں دوستوں کے گھر نہیں جانے دیتے۔ وہ ایسے کیوں ہے آپی، ہماری زندگی کیوں نہیں کھل کر جینے دیتے؟ خبردار عمل، اب تم نے ایک لفظ بھی اور کہا، تمہیں اندازہ ہے آج جس بھائی سے تم شکوہ کر رہی ہو اس نے کیا کچھ کر کے تمہیں پالا ہے؟ ماما بابا جب چھوڑ گئے تھے ہم کتنا اکیلے ہو گئے تھے، بھائی نے ہمیں سنبھالا۔ آج وہ اپنی محنت کے دم تک اس جگہ پر پہنچے ہیں اور انہی کی وجہ سے آج تمہارے پاس دنیا کی ہر آسائش ہے۔ I'm sorry آپی، مجھے اندازہ ہے کہ بھائی نے کیا کیا ہے ہمارے لیے، بس مجھے غصہ آ گیا تھا تو میری جان غصے کو قابو کرنا سیکھو۔ چلو جاؤ شاباش، اٹھ کر فریش ہو کر آؤ، میں کھانا لگاتی ہوں، بھائی بھی آنے والے ہوں گے۔ آپ بھائی سے بات کریں گی نا؟ وفا آپی، اب کہ اس نے فل معصومیت سے کہا، ٹھیک ہے کر لوں گی، ابھی تو جاؤ۔ وفا آپی یو آر بیسٹ، آئی لو یو۔ وفا نے مسکرا کر دیکھا اسے، اور اس کا بھائی ہی تو کل کائنات تھا۔ تم سب کا دماغ ٹھکانے پر ہے یا میں لگاؤں؟ اس وقت دھاڑ رہا تھا اور کسی میں اس وقت ہمت نہیں تھی کہ وہ اس کے آگے ایک لفظ بھی بول پاتے۔ اس کے سامنے آتے ایسے ہی سب کی زبانوں کو قفل لگ جاتا تھا۔ وہ ایس پی اذلان شاہ اکیلا کافی تھا سب کے لیے۔ اس کے دشمن بھی اس کے عتاب سے پناہ مانگتے تھے۔ اس نے ابھی اپنا CS کمپلیٹ کیا ہی تھا کہ اس کے بابا اور ماما کی ڈیتھ ہو گئی تھی ایکسیڈنٹ میں، اور وہ اکیلا چھوڑ گئے اسے اور اس کی بہنوں کو۔ ساری ذمہ داری اس پر تھی۔ اب ویسے تو فاروق شاہ اتنی جائیداد چھوڑ گئے تھے کہ ان کی اولاد بیٹھ کر کھا سکتی تھی، ان کا اپنا کارخانہ تھا۔ جب اذلان نے ان کے دوست کے حوالے کیا تھا، کبھی کبھار خود بھی چکر لگا لیتا۔ اسے اس دنیا میں سب سے زیادہ آ کر کوئی عزیز تھا تو وہ تھی اس کی بہنیں عمل اور وفا، دونوں میں اس کی جان بستی تھی۔ وہ اوور پروٹیکٹر تھا، ان کے لیے ڈرائیور کے علاوہ باہر نہیں نکلتی تھی۔ یہ اذلان کا حکم تھا، ایسا نہیں تھا۔ وہ مغرور تھا، وہ حد سے زیادہ حساس تھا، انہیں لے کر باپ بن کر پالا تھا۔ ان کی بات منہ سے نکلنے سے پہلے ہی وہ پوری کر دیتا تھا۔ وفا اس سے 2 سال بڑی تھی، وفا سے اس کا پیار زیادہ تھا، جبکہ عمل 5 سال چھوٹی اور لاڈلی تھی، اس کی بیٹیوں جیسی۔ اس کی محنت اور ایمانداری کی وجہ سے اس وقت وہ ASP کے عہدے پر فائز تھا۔ 24 سالہ اذلان شاہ وجیحہ شخصیت کا مالک تھا، لمبا چوڑا قد، کالے گھنے بال، سفید رنگت، اوپر براؤن آنکھیں، دونوں گال پر
पढ़ते डिम्पल जो बहुत कम नज़र आते क्योंकि वो रास्ता बहुत कम था। जब से उसके मामा बाबा की डेथ हुई थी वो ज़्यादा खामोश रहने लगा था। कम गो और सीरियस वो पहले ही था, लेकिन अब उस फील्ड में आकर वो ज़्यादा ही सख्त हो गया था। इस दुनिया में लोगों के जुर्मों ने उसे सख्त बना दिया था। भाई आप ही के साथ ये किसने किया? अमल ने रोते अपने भाई से पूछा, जो इस वक्त जब्त की इंतहा पर था। मुझे नहीं पता जिसने भी ये किया है। मैं अजलान शाह आज वादा करता हूँ जब तक इस शख्स को कब्र तक ना पहुँचा दूँ मैं सुकून से नहीं बैठूंगा। अमल इसकी बात पर मज़ीद रोने लगी थी। उसे पता था अब जब तक उसका भाई अपनी बहन के कातिल को तबाह ना कर दे वो सुकून से नहीं बैठेगा। अच्छा उठो तुम खाना खाओ। आज वफा को गुजरे हफ्ता हो गया था, लेकिन उसकी ज़िंदगी जैसे वहीं पर रुकी हुई थी। नहीं भाई मेरा दिल नहीं कर रहा। अमल बेटा भाई की बात नहीं मानोगी? ओके भाई आप भी आ जाएं फ्रेश होकर। अजलान खाना खाने के बाद अमल को सुलाकर अपने कमरे में आ गया था क्योंकि अमल बहुत डर गई थी। वो हमेशा वफा के साथ उसी के कमरे में सोती थी, इसलिए अब उसे मुश्किल हो रही थी, लेकिन आदत तो डालनी थी न। अब वो इस वक्त अपने कमरे में बैठा सिगरेट सुलगा रहा था और सोच बहुत दूर तक थी। अब उसने फ़ोन उठाया और नंबर डायल किया। काशिफ पता लगवाओ उस रात कौन था वहाँ और एसपी अजलान शाह की बहन को हाथ लगाने की हिम्मत किसने की है? सिर्फ 2 दिन है तुम्हारे पास। सर काशिफ ने डरते कहा क्योंकि उसका ये अफिसर तो दूसरों की बहनों के साथ ज्यादती करने वालों को नहीं बख्शता था। अब यहाँ बात तो उसकी अपनी अजीज बहन की थी। हमजा कल से आप मेरे साथ ऑफिस जाएंगे, सुलेमान साहब ने कहा। पापा अभी तो मैं फ्री हुआ हूँ, आप अभी से मुझ पर जिम्मेदारियाँ डाल रहे हैं। कुछ दिन तो रुक जाएं, मैं अभी दोस्तों के साथ घूमना चाहता हूँ, ज़िंदगी इंजॉय करना चाहता हूँ। अभी तो बस मेरा BBA कंप्लीट हुआ है, MB तो करने दे जिसके लिए मुझे कनाडा जाना है। ये काम तो साथ साथ होते रहेंगे। आप पिछले 1 महीने से दोस्तों के साथ घूम फिर रहे हैं, वो दोस्त मुझे कुछ ख़ास पसंद नहीं हैं। कल से आप मुझे ऑफिस में नज़र आएँ। कनाडा जाने में अभी 4 माह बाकी हैं, तब तक मेरे साथ काम करवाएं ताकि आपको भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो। ओके डैड। अब हमजा ने भी हार मानते कहा। कहाँ जाने की बात हो रही है पापा? भाई फिर से कहीं जा रहे हैं? नहीं मेरी मोटो कहीं नहीं जा रहा, ऑफिस आने का कह रहे हैं पापा। पापा देखें भाई ने मुझे फिर से मोटी कहा। हमजा बाज आ जाओ, बहन को तंग ना किया करो। पापा तंग नहीं कर रहा, उसके अलावा है ही कौन हमारी ज़िंदगी में? रौनक है मनाल हमारे घर की। अब वो आकर बैठी तो सलमान साहब उनकी नोक जोक से लुत्फ अंदोज हो रहे थे। वो दोनों ही तो उनकी कुल कायनात थे। उन्होंने फायजा बेगम से लव मैरिज की थी जिसकी सब ने मुखालफत की थी और दोनों की फैमिलीज उनसे तल्लक ख़त्म कर लिए थे और ख़ुद फायजा बेगम मनाल की पैदाइश पर ही उन्हें अकेला छोड़ गई थी। हमजा तब 6 साल का था। सुलेमान साहिब को बेटी की बहुत ख्वाहिश थी और फिर एक दिन फायजा बेगम ने उन्हें मनाल के आने की खुशखबरी सुनाई थी। वो बहुत खुश थे और फिर वो मनाल को इस दुनिया में लाकर खुद अब्दी नींद सो गई थी। मिनाल को सलमान साहब ने बहुत नाजों से पाला था और हमजा की तो वो अपनी इकलौती बहन में भी जान बसती थी। मनाल अब 18 साल की हो गई थी, लेकिन उसका ख्याल 10 साल की बच्ची की तरह रखते थे उसके बाबा और भाई। यही वजह थी कि वो बहुत हसास थी और छोटी छोटी बात पर परेशान और रोने लगती थी। उसे नाज़ों में पाला गया था। दुनिया की सख्तियों का उसे पता नहीं था अभी, लेकिन बहुत जल्द किस्मत उसे किसी के कदमों में रोंदने वाली थी। 18 साल की मनाल देखने में बिल्कुल बच्ची थी, मुतनासिब कद,
भूरे बाल जो आबशार की तरह ज़्यादातर उसकी कमर पर बिखरे रहते थे, गुलाबी गाल, रुई जैसे बारीक होंठ देखने वालों को पहली नज़र में ही अपना असीर बनाने की सलाहियत रखती थी। इस वक्त वो अपने इंटर के रिज़ल्ट के इंतज़ार में थी। भाई मैं आ जाऊँ अंदर? वफ़ा ने दरवाज़े पर खड़े ही इजाज़त मांगी। मैंने कितनी बार कहा है वफ़ा, इजाज़त लिए बगैर आ जाया करो। भाई क्या कर रहे हैं? वफ़ा ने अंदर आकर पूछा। बस पुलिस स्टेशन जाने की तैयारी। तुम बताओ, किसी चीज़ की ज़रूरत है क्या? मैं सिर्फ मतलब के लिए आपके पास आती हूँ। अरे नहीं मेरी जान, यहाँ आओ, मेरे साथ बैठो। वो छोटे छोटे कदम बढ़ाती उसके साथ आकर बैठ गई और उसके कंधे पर सर रख लिया। क्या हुआ है वफ़ा, परेशान क्यों हो? भाई मामा बाबा हमें इतनी जल्दी क्यों छोड़ गए? उसने रोंदी आवाज़ में पूछा। अज़लान ने ख़ुद को कंट्रोल किया और कहा, बस अल्लाह ताला ने उनकी ज़िंदगी इतनी ही लिखी थी। मैं हूँ ना, मुझसे कहो जो कहना है, मैं अपनी दोनों बेटियों की ख्वाहिश पूरी करूँगा। भाई वो तो आप हमेशा से ही करते आ रहे हैं। आप हमसे इतना प्यार क्यों करते हैं? तुम्हें और अमल को मैंने पाला है वफ़ा। मुझे लगता है अगर तुम लोगों के हकूक़ पूरा ना कर सका तो क़यामत के रोज़ मामा बाबा नाराज़ होंगे मुझसे। अच्छा छोड़ें, काफ़ी पिएंगे? वफ़ा ने अज़लान का मूड ठीक करने के लिए कहा। वो अपने भाई को अपसेट नहीं देख सकती थी। ज़रूर, मैं अपनी वफ़ा के हाथ की काफ़ी को मना कर सकता हूँ भला। वफ़ा खुशी से काफ़ी बनाने चली गई। काशिफ, पता चला कुछ कि ये सब किसने किया है? जी सर, आधी से ज़्यादा मालूमात हासिल हो गई हैं। कल सुबह सारी रिपोर्ट आपके टेबल पर होगी। मुझे इंतज़ार रहेगा सुबह का। सर कहो। सर आप उसे भी फांसी की सज़ा दिलवाएंगे? अरे नहीं, उसे तो मैं तड़पा तड़पा कर मारूंगा और वहाँ से मारूंगा जहाँ से उसे उम्मीद भी नहीं होगी। लेकिन सर कानून? काशिफ, मैं इस शख्स को इबरत का निशान बनाना चाहता हूँ लोगों के सामने, जिसने मेरी बहन को, मेरी एसपी अज़लान शाह की बहन की इज्जत को तार तार किया है। काशिफ ने वहाँ से जाना ही मुनासिब समझा और निकल गया और आसमान की तरफ देखकर उस शख्स के लिए पनाह मांगी जिसकी अब आगे की ज़िंदगी तबाह होने वाली थी। अज़लान को वो सब लम्हे याद आए जो उसने वफ़ा के साथ गुजारे थे। हमेशा अपनी बहनों की हिफाजत करने वाला अज़लान शाह इस वक्त बेबस था। हमेशा उनकी हिफाजत की थी और आज वो उसकी लाडली बहन उनके दरमियान नहीं थी। माजी, ओए मोटी कहाँ जा रही हो? हमज़ा ने पूछा। भाई मैं आपको मोटी कहाँ से नज़र आती हूँ? आज आप मुझे बता ही दिए। वो लड़ाका औरतों की तरह कमर पर दोनों हाथ रख कर खड़ी हो गई। हमज़ा ने अपनी बहन को देखा जो छोटी सी थी लेकिन मोटी कहीं से नहीं थी। उसने दिल में उसके अच्छे नसीब की दुआ की। कहीं से नहीं हो, माफ़ कर दो मेरी माँ। हमज़ा ने हाथ जोड़े। अब ओके जाएं, क्या याद करेंगे, माफ़ किया। लेकिन क्या? हमज़ा को पता था अब वो उसकी जेब खाली करवाएगी जिसके लिए वो दिलो व जान से तैयार था। आप मुझे शॉपिंग करवाएंगे? और वापसी पर आइसक्रीम मनाल ने कहा। जो हुक्म मेरी गुड़िया का, मेरी क्या मुजाल। चलें आप गाड़ी निकाले, मैं आती हूँ तैयार होकर। वो कहते साथ ही भाग गई। हमज़ा भी मुस्करा कर उठ गया। अब वो अपनी गुड़िया को नाराज़ तो नहीं कर सकता था। वो लाडली थी, उसकी बात मुंह निकलने से पहले पूरी कर दी जाती। हर चीज़ की आज़ादी थी उसे, क्योंकि उसकी तरबियत उसके बाबा और भाई ने की थी। अज़लान आज रेस्टोरेंट आया था अपने दोस्त से मिलने, एक केस के सिलसिले में। अभी वो उठ कर गया ही था
اور اب اذلان بھی جانے لگا تھا کہ ساتھ ٹیبل پر بیٹھی لڑکی اور سامنے موجود لڑکے کی باتوں کی طرف دھیان گیا۔ اور کیا کر رہی ہو آج کل منال؟ ابھی تو نہیں سوچا، رزلٹ آئے گا تو میں اور پریشے سوچیں گے۔ اوکے وہ تو ٹھیک ہے، پر تم مجھے بھائی نہ کہا کرو۔ کیوں؟ بس نہیں کہا کرو، اچھا نہیں لگتا، اور کیا پتا کل کو ہمارا رشتہ بدل جائے۔ سامنے موجود لڑکے نے معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ کیسے؟ ارے چھوڑو، پریشے آ گئی ہے تمہاری آئس کریم لے کر، احمد پریشے کے بھائی نے کہا۔ آج منال پریشے کے ساتھ یہاں آئس کریم کھانے آئی تھی۔ پریشے اس کی واحد دوست تھی، کیونکہ اسے اپنے بھائی کے ہوتے ہوئے کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی تھی دوستوں کی۔ اذلان بھی اب اٹھ گیا۔ نہ جانے ان لڑکیوں کو عقل کب آئے گی، کسی پر بھی منہ اٹھا کر بھروسہ کر لیتی ہیں۔ لگ تو چھوٹی سی رہی تھی اور معصوم بھی، خیر مجھے کیا، منہ میں بڑبڑاتا وہ نکل گیا۔